Hello students, welcome back to the social studies class. Today we are going to start chapter 9 which is growing knowledge. तो आज हम social studies का chapter 9 शुरू करेंगे जिसका नाम है growing knowledge और हम इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे? Understanding purpose, the story of writing, the story of numbers, the story of paper, the invention of printing, the script and books for the blind and the importance of literacy. हमने पहले से इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है? We all learn how to write. We love to read books. Education plays very important role in our life. So let's start with this activity. Identify the names of countries where the following were developed for the first time. ये सब चीजों में कौन सी चीज कहाँ किस कंट्री में सबसे पहले डेवलप हुई थी, आपको इसके बारे में पता लगाना है और यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं. So let's start the chapter. Man has always been eager to make his living conditions more comfortable. Unlike other animals, he learns from the past experiences, keenly observes the present and imagines things beforehand. Thus, this feat of progress covered almost all the fields of life. So we can say that man is the most intelligent living being on the earth. Observations and feelings give birth to experience. Thus the man gained knowledge day by day. He narrated it to his children. They learned fast. After many generations, the knowledge grew so much that it was not possible to memorize and narrate it fully. So the man felt the need of for the preservation of knowledge. Since necessity is the mother of invention, then the man developed the art of drawing, painting and writing. He also developed the skill of printing. तो जो मैन है उसने हमेशा से अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा और अपनी नॉलेज को अपने बच्चों को ट्रांसफर किया. जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज पास होती गई और एक दिन नॉलेज इतनी बढ़ गई उसको सिर्फ याद रखना पॉसिबल नहीं था. तो मैन ने अपनी उस नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग चीजें इन्वेंट की जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रिंटिंग. माय वोकैबुलरी, हमने इस पैराग्राफ में दो नए वर्ड सीखे. वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज ईगर, स्ट्रांगली वांटिंग टू डू, कुछ भी चीज करने की बहुत इच्छा. सेकेंड, कीन, वेरी इंटरेस्टेड. सेम, कीन का मतलब भी कि किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना. Next है the story of writing. Paintings found in caves show the starting point of writing. These are pictures of objects that man came across in his daily life. When man was a hunter, he drew the pictures of animals, people and their ways of living. Gradually, man learned to express his thoughts through pictures. It required more time. So the pictures were simplified and became more symbolic. Different signs of symbols begin to be used for various things and then the different sounds, these signs gradually developed into alphabets of that time. तो राइटिंग की शुरुआत होती है जब मैन ने केव्स में पेंटिंग करना शुरू किया. उस टाइम पर इंसान ने उन चीजों की पिक्चर बनाना शुरू किया जो चीजें वो अपने आसपास डेली लाइफ में देखता था जैसे कि एनिमल्स या फिर और कुछ. धीरे धीरे मैन ने अपने उन चीजों के या अपने थॉट्स को कुछ सिंबल्स के अंदर एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया और वो सिंबल्स एक टाइम पर अल्फाबेट्स बने और इस तरीके से राइटिंग की शुरुआत होती है. In Egypt and Mesopotamia, the earliest writings were developed about 6,000 years ago. The examples of pictorial writings are found in the ancient tombs of Egypt. In Egypt, the pictorial script is inscribed on the tombs of the kings. Modern script of Korea, China and Japan has evolved from pictorial scripts. The early Egyptian writing using signs and symbols was called hieroglyphics. The earliest known script that can be called writing, not pictures, was developed by the Sumerian people living in Mesopotamia. The scratched images or an earthen tablet with sharp-edged tools and then let them dry in the sun. They also wrote on palm leaves.
सबसे पहले इजिप्ट और मेसोपोटामिया में राइटिंग्स की शुरुआत हुई ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स अगो। उस टाइम पर राइटिंग पिक्टोरियल हुआ करती थी, यानी कि वो बात जो कहना चाहते थे, जिसके बारे में कहना चाहते थे, उसकी पिक्चर को बना देते थे और उसी को राइटिंग कहते थे। इजिप्ट के एंशिएंट टूम्स में राइटिंग के सोर्सेज मिले हैं। आजकल की मॉडर्न स्क्रिप्ट में चाइना, जापान और कोरिया की स्क्रिप्ट पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हो गई। धीरे धीरे उन्होंने इमेजेस को स्क्रैच करा, अर्दन टैबलेट्स को स्क्रैच करके लिखना शुरू किया और उसके अलावा उन्होंने पाम लीव्स पर भी लिखना स्टार्ट किया। इन दिस पिक्चर हम देख सकते हैं द इजिप्शियन सिस्टम ऑफ राइटिंग। ये दुनिया की सबसे पुरानी राइटिंग्स में से एक है। In India, the earliest script was seen on the seals of the Indus Valley civilization that existed about 5000 years ago, 3000 BC. Though the writings on the each seal is clear, but even today experts are unable to read it. इंडिया में सबसे पुरानी स्क्रिप्ट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स पर मिलती है, जो कि अराउंड 5000 ईयर्स पुरानी है। हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि उस राइटिंग का मतलब क्या है, पर ये बात सच है कि हमारे यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, वो दुनिया की कई पुरानी स्क्रिप्ट्स में से एक है। और यहाँ पर हम इंडिया की और कई पुरानी स्क्रिप्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि तमिल, ब्राह्मी एंड शारदा। In India, after the Indus Valley script, the Brahmi script was developed. Most of the Indian script used today have been derived from Brahmi, including the Devanagari. आज हम इंडिया में जो भी स्क्रिप्ट यूज करते हैं, उनमें से बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आई हैं, जो कि इंडिया की कई सारी पुरानी स्क्रिप्ट्स में से एक है। My vocabulary. फर्स्ट वर्ड है inscribe, जिसका मतलब है to write और cut words on something. किसी भी चीज पर कुछ लिखना या फिर वर्ड्स कार्व करना। सेकेंड वर्ड है स्क्रैच, मतलब टू मेक अ मार्क ऑन अ सरफेस, किसी भी सरफेस पर कोई मार्क बनाना। हम यहाँ पर अलग अलग इंडिया की लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स देख सकते हैं, जैसे कि हिंदी के, बंगाली के, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती के और इंग्लिश के। The way or mode of writing the Hindi language is called the Devanagari script. In India, there are 18 major languages and most of them have their own script. Marathi language is written in Devanagari script, like Hindi, English is written in Roman script. तो इंडिया में हम हिंदी लिखने के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और उसके अलावा हमारे यहाँ 18 मेजर लैंग्वेजेस भी हैं। मराठी लैंग्वेज भी देवनागरी स्क्रिप्ट का ही यूज करती है। इंग्लिश लिखने के लिए हम रोमन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। Several modern languages including Devanagari are based on sound pronunciation. By different letters, different sounds are represented. जो ज्यादातर स्क्रिप्ट हैं वो लैंग्वेजेस की साउंड से आती हैं, मतलब जो अल्फाबेट्स हैं वो डिनोट करते हैं कि हम क्या साउंड अपने मुंह से निकाल रहे हैं। Let's do it. Let's see this activity. Start writing a personal diary. Keep a daily record of the important events of the day. At the end of the month, you will have your own personal history record. Some year later, when you read the diary again, some things will make you laugh, some will make you cry. तो आज से ही अपनी पर्सनल डायरी बनाइए, उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिखिए और एंड ऑफ द मंथ में ऐसा जरूर होगा कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी और कई सालों बाद जब आप डायरी को वापस पढ़ेंगे तो उन चीजों को पढ़कर या तो आपको हंसी आएगी या फिर रोना। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ नंबर्स। स्टोरी ऑफ नंबर्स क्या है? The early man tamed animals. He needed to identify them by name and also count their numbers. He kept account of his goods and animals by name and also to count their numbers. He kept an account of his goods and animals by marking on them or notches with a sharp knife on a stick. He used stones or pebbles also to count. Sometimes he tied as many knots in the long piece of rope as the animals. तो पुराने जमाने में इंसान को अपने कैटल्स, एनिमल्स, शीप्स ये सबको काउंट करने की जरूरत पड़ती थी, तो उसने कई तरीके बनाए जिससे वो अपने एनिमल्स को काउंट कर सके, अपने गुड्स को काउंट कर सके, जैसे कि स्टिक पर अपने नाइफ से कार्व करना,
पत्थरों के जरिए या फिर किसी बड़ी सी रस्सी पर अलग अलग गांठ बांधकर। इस तरीके से वो काउंट करता था। द यूज ऑफ फिंगर्स फॉर काउंटिंग फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया। द नंबर्स 1 to 10 also originated in India. The Arabs adopted it and passed it on to the Western countries. The concept of zero and decimal system was also first invented in India. The Arabs called the numbers Hinsa, meaning of India. Through Arabs traders, the Indian numbers reached Europe and were called Indo-Arabic numbers. Later Indo-Arabic numbers traveled to the whole of the world and named as international numbers. The system of numbers, thus the system of numbers used today is based on the ancient Indian system. तो सबसे पहली बार फिंगर्स पर नंबर काउंट करने का सिस्टम इंडिया में शुरू हुआ और 1 to 10 तक की काउंटिंग भी इंडिया में ही शुरू हुई। इंडिया से अरब ट्रैवलर्स ने इन नंबर्स को पिक किया और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज तक में इन नंबर्स को फैलाया। ये नंबर्स धीरे धीरे जाकर इंडो अरेबिक नंबर्स के नाम से जाने गए और आज इनको इंटरनेशनल नंबर्स कहते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कुछ स्क्रिप्ट जो कि एंशिएंट इंडिया की हैं। माय वोकैबुलरी, हमने यहाँ पर कौन से दो नए वर्ड सीखे? फर्स्ट है नॉच, अ कट इन एन एज और सरफेस, किसी भी सरफेस या किसी की एज पर एक कट करना। पेबल, पेबल मतलब अ स्मूथ राउंड स्टोन, एक ऐसा पत्थर जो चिकना है और गोल है। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ग्रीक एंड लैटिन। लैटिन इज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। रोमन्स यूज 7 लेटर्स ऑफ देयर अल्फाबेट टू राइट नंबर्स। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और इसका ओरिजिन ग्रीक और लैटिन से हुआ। रोमन्स ने 7 लेटर्स बनाए थे अपने अल्फाबेट को लिखने के लिए, जैसे कि ये 1, 2, 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. I, V, X, L, C, D and M. In the modern age, complicated calculations are done with calculator and computers. तो आज के ज़माने में मॉडर्न एज में जब हमारी कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं तो उसके लिए हम कैलकुलेटर और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। बट कैलकुलेशंस विद दीज सिंबल्स बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो इंडो अरेबिक नंबर्स वर एक्सेप्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉल्ड इंग्लिश नंबर्स। तो रोमन नंबर्स के जो अल्फाबेट्स थे उनसे कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इंडो अरेबिक नंबर्स को एक्सेप्ट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में और उन्हें इंग्लिश नंबर्स कहा जाने लगा। थिंकिंग शॉर्ट, फाइंड आउट हाउ द नंबर्स 1 to 10 आर रिटन इन योर मदर टंग। तो आप पता कीजिए कि अगर आपकी कोई मदर टंग है जो कि इंग्लिश से अलग है तो उनमें 1 to 10 को कैसे लिखते हैं, ये काम आपका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम द स्टोरी ऑफ पेपर। पेपर की स्टोरी। मैन हैज ऑलवेज यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड हिम फॉर राइटिंग मेनी मटेरियल्स लाइक barks of trees, palm leaves, earthen tablets and reeds were used. The Egyptians were the first to make paper from a reed called papyrus. The word paper is derived from papyrus. They cut the stalks of the papyrus reeds into thin stripes and pressed the intertwined layers of stripes into sheets. In this picture you can see paper making machine. पेपर का इन्वेंशन हुआ पैपरस नाम के एक पेड़ से। इंसान ने हमेशा से ही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया अपने लिए और उसमें उसने अपनी राइटिंग के लिए अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए, जैसे कि ट्रीज के बाग पर लिखा, पाम लीव्स पर लिखा, अर्दन टैबलेट्स पे लिखा और उसके बाद इजिप्शियंस जो लोग थे उन्होंने पेपर का फर्स्ट टाइम यूज किया पेपरस रीड पे लिखकर, जो कि पैपरस कहलाई। पेपर वर्ड पैपरस से ही आया है। उन्होंने पैपरस को थिनली स्ट्राइप्स में काटा और उनको प्रेस किया, उनको शीट में बनाया और उसके बाद उस पर लिखाई शुरू की, उसके बाद उस पर राइटिंग की शुरुआत की। For a long time, papyrus continued to be used as writing material. Then, the Chinese perfected the art of making paper from crushed reeds, jute, hemp, straw, and bamboo. Now, paper is made from soft pulp of wood. This pulp is flattened and pressed to convert into paper. The demand of paper increased when books began to be printed on printing presses.
कई लंबे समय तक इजिप्शियंस ने पेपरस पर अपनी राइटिंग की शुरुआत की और एक टाइम के बाद चाइनीज ने धीरे धीरे पेपर बनाने में परफेक्शन हासिल किया जब उन्होंने क्रश्ड रेज और जूट की हेल्प से एक बहुत पतला सा पेपर बनाया और उस पर लिखने की शुरुआत की। आज पेपर इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है। जैसे जैसे पेपर्स को बनाकर और छापना का प्रोसेस शुरू हुआ, अब पेपर इंडस्ट्री में अब पेपर की डिमांड वर्ल्ड में बहुत बढ़ गई है। The invention of printing. In the beginning, books were written and copied by hand. It was a very slow process. These handwritten books were very costly and few people were able to buy and read them. The Chinese were the first to use printing, which means to prepare more and more copies of books in less time. पुराने जमाने में बुक्स को डायरेक्टली हैंड से लिखकर उसके बाद उसको बेचा जाता था। उस टाइम पर बुक्स बहुत कॉस्टली होती थी और सिर्फ कुछ ही लोग उनको पढ़ पाते थे और खरीद पाते थे। चाइनीज लोगों ने सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत की और ज्यादा से ज्यादा बुक्स की कॉपीज बनाना शुरू की। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। पिक्चर्स एंड वर्ड्स वर कार्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ वुड्स। देन दीज ब्लॉक्स वर inked and printed on paper. This was the art of block printing, but its use was limited. The blocks took a long time to make. Several copies of book could be made from them. In the year 1450, Johannes Gutenberg of Germany brought about a revolution in printing by making several small metal molds of the letters of the alphabet. These were called types. Types could be arranged to form words, lines and pages. It was called typesetting. Ink was applied on the typeset pages and then they were pressed on paper to get the impression. Putting together the types to make a page of a book was much faster and easier than making a block of a page. Books could be printed much faster and in large numbers, became cheaper and many more people could read them. चाइनीज लोगों ने ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत की। उन्होंने एक वुड लिया, ब्लॉक लिया वुड का और उसके अंदर अलग अलग चीजों को कार्व किया और उसके अंदर इंक डालकर उसका इम्प्रिंट निकाला जाने लगा। लेकिन फिर भी ये मेथड बहुत स्लो था और बहुत टाइम टेकिंग था। उसके बाद जर्मनी के जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने पेपर की प्रिंटिंग की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मेटल के मोल्ड्स बनाए, उनके अंदर इंक भरा और उसके बाद उससे टाइपिंग प्रिंटिंग शुरू हुई और उन्हें टाइप्स कहा जाने लगा। और इसके बाद धीरे धीरे बुक्स चीपर होती गईं और लोगों ने उनको रीड करना शुरू किया। इन पिक्चर्स में हम अलग अलग टाइप देख सकते हैं। मेटल से बने हुए टाइपसेट पेजेस देख सकते हैं और लेटर ऑफ प्रेस भी देख सकते हैं। Gutenberg's invention of letter press was a revolution in the method of preserving and spreading knowledge. Gradually, the quality of printing improved. Nowadays, colorful books, magazines, and newspapers are available at a reasonable price. The matter to be printed is first typed and corrected on a word processing computer. Sample prints are taken out. A photo plate is made and printed on offset press in multicolor. Now a book of thousands of pages can be composed on a microfilm, which may be kept in your pocket. You can read any page on any computer screen by pressing a button. In this picture, we can see composing a page on computers. तो जोहानस ग्यूटेनबर्ग की उस इन्वेंशन के बाद धीरे धीरे बुक्स पब्लिकली एक्सेसिबल हो गई। आजकल के ज़माने में कलरफुल बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स सब कुछ बहुत ही रीजनेबल यानी कि बहुत ही कम अमाउंट पर अवेलेबल है, जिससे कि सभी लोग उनको खरीद सके और नॉलेज आगे बढ़ सके। धीरे धीरे अब फोटो प्लेट्स बनने लग गई हैं, जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स में और अलग अलग कलरफुल बुक्स को छापा जा सकता है। आजकल माइक्रोफिल्म पर भी पूरी की पूरी बुक्स जो हैं वो अपलोड हो सकती हैं और हम अपनी पॉकेट में उसको रख सकते हैं और कभी भी बस कंप्यूटर पर उसको पढ़ सकते हैं। In the last several years, e-books have become a mainstay and a powerful trend in the publishing industry. E-books are usually less expensive than their paper counterparts. However, there are exceptions. But printed books have some advantages over e-books, including that they have the feel of a book that many readers love. Also, for those
who like to read as they fall asleep, paper books make a better choice since there is no eye strain that comes with an electronic device or e-book. तो आज के ज़माने में ई बुक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। ई बुक्स में हम डिजिटली किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं और ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है। उसके अलावा ई बुक्स जो हैं वो पेपर बुक से सस्ती भी होती हैं और उनके कई एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पेपर काउंटर पार्ट्स यानी कि जो प्रिंटेड पेपर बुक्स होती हैं, कुछ लोगों को बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो स्ट्रेन होता है आईज पर वो भी नहीं पड़ता अगर हम डायरेक्ट पेपर बुक पढ़ते हैं तो। माई वोकैबुलरी मेनस्टे मतलब अ थिंग दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई ऐसी चीज जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो। थिंकिंग शॉर्ट, अब आप ये सोचिए, व्हाई वाज द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन एक लैंडमार्क क्यों बना हमारी मैनकाइंड, हमारी ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में? द स्क्रिप्ट्स एंड बुक्स फॉर द ब्लाइंड, तो ऐसी स्क्रिप्ट या बुक्स जो कि उन लोगों के लिए लिखी जाती हैं जो देख नहीं सकते। People who are blind can see with their fingers. They touch your face to read your features and understand how you look like. There is a special script of letters by which blind people learn to read is called Braille script. It was invented by Louis Braille of France, who himself was blind. तो जो लोग देख नहीं सकते बट वो तुम्हें फील कर सकते हैं अपनी फिंगर से, अपने टच से, तो ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए या वो कुछ समझा सके उनको, उसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई गई जिसका नाम है ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन लुई ब्रेल ने किया था, फ्रांस के जो थे और खुद भी ब्लाइंड थे, और उसकी मदद से एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है जो उंगलियों से पढ़कर भी समझी जा सकती है। इन ब्रेल द लेटर्स आर प्रिंटेड इन सेम पैटर्न ऑफ स्मॉल डॉट्स व्हिच आर रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेपर. The blind person feel it with the touch of her fingers. Braille is read by lightly running the fingers along these dots. Such books have proved very useful in educating the blind. तो ब्रेल स्क्रिप्ट में कुछ डॉट्स से लेटर्स क्रिएट किए जाते हैं और वो डॉट्स जो होते हैं सरफेस से थोड़ा उठे हुए होते हैं ताकि उनको फील किया जा सके, और इसकी वजह से जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी पढ़ पाते हैं। इन पिक्चर में आप देख सकते हैं ही इज लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार की, और ये जो बीच वाली पिक्चर है ये है ब्रेल अल्फाबेट, मतलब ये है ब्रेल स्क्रिप्ट। और उसके अलावा हम देख रहे हैं दूसरी पिक्चर में कि एक ब्लाइंड चाइल्ड जो है वो अपने आप से पढ़ने की कोशिश कर रहा है थ्रू द यूज ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। Thus they can compete with normal people in learning and working. Now books are also be recorded on audio tapes, which is a boon to the visually disabled. These audio tapes are called talking books. तो आजकल जो बुक्स हैं वो ऑडियो बुक्स भी आने लग गई हैं जिसमें बुक्स को रिकॉर्ड किया जाता है ऑडियो में, और ऑडियो टेप्स की हेल्प से काफी हेल्प मिलती है जो लोग पढ़ नहीं पाते उनके लिए। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। लिटरेसी मतलब क्या? लिटरेसी मतलब कि आपके पास कितनी नॉलेज है, और उस नॉलेज को ही लिटरेट कहा जाता है, उस नॉलेजेबल इंसान को ही लिटरेट कहा जाता है। Knowledge is the greatest power on the earth. Literate people can understand the new techniques and use them to earn money. They can improve their ways of thinking, speaking, and behavior. They can understand their culture and ways of living. They are able to understand what is good and what is bad for them. Thus, literate people have a big role in the progress of their country. Government of India is taking measures to promote education through compulsory and free primary education, adult literacy programs and campaigns. So now people of India becoming literate. तो नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी पावर है अर्थ पर। लिटरेट पीपल कुछ भी चीजें समझ सकते हैं, नई टेक्निक समझ सकते हैं और उनसे सीखकर पैसा भी कमा सकते हैं। वो अपने सोचने के तरीके बदल सकते हैं, अपना स्पीकिंग का तरीका और बिहेवियर भी बदल सकते हैं। वो कहीं का कल्चर समझ सकते हैं, वो अलग अलग वेज ऑफ लिविंग भी समझ सकते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे मेजर्स ले रही है ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिले और वो इंडिया को एक अलग जगह पर लेकर जाएं। So, this was the end of this. Let's summarize कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ी The story of paper. Paper is made from soft pulp of wood. The invention of printing. The story of numbers. The system of numbers used today is based on the ancient Indian system. The story of writing. Paintings found in caves show the starting point of writing. The importance of literacy. Knowledge is the greatest power on the earth. And the script and the books for the blind. Blind people use braille script to read and write. Thank you class. Let's meet again in the next chapter.